Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am present for lecture 5 of intermediate second year. You know, in the previous 4 lectures, you viewed the introduction of book 2, and then in 3 lectures, we completed our first lesson, The Dying Sun. You know that 50% portion has been given to book reading, books, and 50% is grammar. So I don't altogether neglect the grammar. Today, after 4 lectures, the fifth lecture is about grammar. You know, in your MCQs, you have 5 marks fill in the blanks with preposition and 10 marks idioms in your subjective portion. So today I'll try to give you understanding about idioms and prepositions. In my some lectures, there will be simultaneous study of book 2 and the synonyms that will be with the book, and idioms and preposition will also be included in the grammar. So in this lecture, first of all, we'll start with the idioms because idioms weightage is 10 marks, and we'll start it right today. Idioms जैसे कि कहा जाता है कि these are the words which give meanings other than their lexical meaning. Lexical mean their dictionary meaning. The words which meaning in dictionary is different and their conventional meaning is different, and these idioms are used in their conventional meanings. Just I want to give you an example. There is an idiom, kick the bucket. Kick the bucket, बाल्टी को ठोकर मारना. There's no obvious meaning, apparent meaning, which are applicable, but this idiom is used to show die, मर जाना. तो कन्वेंशनल मीनिंग इसके क्या है कि जब यूनानी बादशाहों के दौर में जब किसी को फांसी दी जानी होती थी तो उसको नीचे एक बाल्टी में रेत या मट्टी वगैरह डाल के रख दिया जाता था और उस पे उस कल्परेट को खड़ा किया जाता था और उसके गले में रस्सी डाल दी जाती थी और फिर वो जल्लाद है वो बाल्टी को ठोकर मार के पाँव के नीचे से निकाल देता था और वो हैंग हो जाता था और वो फांसी. To kick the bucket, die. So in the same manner, there are idioms, a series of idioms. But here in my lectures, I will not discuss all idioms because in the books in different grammars, there are more than 500 idioms in each. But here I'll discuss first idiom series, that is almost 290, and then there will be phrasal verbs. They are also about 1. So uh, I'll try to condense that 800 words into almost 350 words. So for your convenience, that is only according to the examination point of view, and you can learn them to pass your examination. So I'm going to going to show you the idiom, a series of idioms before you on the screen, so that we'll start it right now. स्टूडेंट्स, ये एडीएम्स की फर्स्ट शीट आपके सामने मौजूद है और इस शीट में आप देखेंगे कि आपके जितनी मरतबा एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं वो 7 आपके मेंशन किए हुए हैं. जैसे मैंने कहा था कि
I'll just tell you those idioms which are important from examination point of view. So a bit dim, but you will just zoom it and look at it. First is an apple of one's eyes, आंखों का तारा होना. An apple of one's eyes, आंखों का तारा होना, मंजूर नजर होना. So he is an apple of his teacher's eyes. Okay? या किसी और का अहमद is an apple of his father's eye. इसका वेरिड अंदाज से आप ले सकते हैं. दूसरा है an apple of discord, फसाद की जड़, जो हमेशा ही फसाद डलवाता रहे हमेशा. तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर जो है वो फसाद की जड़, झगड़े की वजह. अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, यानी आसाइश, आराम की जगह. तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर द पुअर, गरीबों के लिए जिंदगी जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों की सेज नहीं. अबव बोर्ड, अबव बोर्ड जिसके बारे में कोई शक ना किया जा सके, यानी जिसकी बेलाग वाजे हो. जैसे मैं अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं हर वक्त मैं यही कहूँगा कि मैं अपने मुल्क से, किसी दूसरे की बात हो तो हम फ़ौरन फ्लेयर अप हो जाऊँगा. मैं कहूँगा कि ये मैं मेरा मुल्क ऐसा है. तो मेरी अपने वतन से मोहब्बत जो है वो शक से बालातर है, बेलाग है. अ टीचर शुड be honest and above board in his dealings. अपने डीलिंग्स में बेलाग होना चाहिए, वाज़ेह होना. पांचवा है a fish out of water, जिस तरह मछली पानी से बाहर बेचैन होती है, इस तरह की बेचैन, माहिए बेआर. She was like a fish out of water in the absence of her son. अपने बेटे की जो है गैर मौजूदगी में वो एक माहिए बेआब की तरह नजर आए. A wild goose chase, एक बेकार कोशिश, ऐसी बेसमर, ऐसी मुहिम जिसका नतीजा वो कामयाब ना हो. It is a wild goose chase to convince a foolish person, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने को, कि एक बेवकूफ आदमी को कायल करना जो है वो एक वाइल्ड गूस चेज ही है, बेसमर. All and sundry, हर कसो नाकस, आम और खास सारे लोग. All and sundry, all and sundry took part in sports. हर कसो नाकस, हर किस्म के लोगों ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया. At the 11th hour, एन आखिरी वक्त पर, बहुत अहम ये इडियम है, एन आखिरी वक्त पर. The meeting was put off at the 11th hour because of heavy rain. बहुत शदीद बारिश की वजह से आखिरी वक्त मीटिंग कैंसिल कर दी. नेक्स्ट इज एट लार्ज, आज़ाद, बेफिक्र, बेखौफ घूमना. करप्ट पीपल आर एट लार्ज नाउ अडेज, आजकल जो है वो करप्ट लोग आज़ाद फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं. एट डैगर्स ड्रॉन, जिनकी दुश्मनी हो, जिन्होंने तलवारें खींची हुई एक दूसरे पर. पाकिस्तान इंडिया आर एट डैगर्स ड्रॉन ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दुश्मनी में चल. तो these 10 idioms you will learn, because I'll not give you any burden, pile up the burden on you. I'll give you only those which you can easily understand. तो 10 ये idioms हैं. इसके बाद हम
जो है वो प्रपोजिशन स्टार्ट करेंगे। प्रपोजिशन, क्योंकि दो चीज़ें, अगर मैं ईडीएम ही आपको 20 वो लेके जाता तो आपके लिए बोरिंग हो जाता। तो मैं अब चंद अल्फाज जो है, चंद चीज़ें ईडीएम्स के बारे में, एंड आई होप दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल, बिकॉज preposition is a segment which is largely a part of memory. उसको अपने याद करना था वर्ड्स जो फॉलोड बाय preposition। लेकिन मैं इसको आपको रूल्स भी उसके समझाऊंगा और इसके साथ साथ आपको इसके डिस्क्रिप्शन के साथ वर्ड्स भी याद करना। तो dear students, first of all, I'll show you a sheet on the screen on which you will find what real preposition is। preposition होती क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि preposition हम लोग जब कहते हैं कि ही इज इन द ड्राइंग रूम, इन द ड्राइंग रूम, इन प्रपोजिशन जो है ये प्री पोजिशन, ये लफ्ज है एक्चुअली, जो पहले लगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले ये लगती है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, उससे पहले जो है वो ये इस्तेमाल होती है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी। ऑन द रूफ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन, above uh, the uh, above the people, under the table, over the hall, beneath a roof। So all these preposition, कौन किसके नीचे है, किसके ऊपर है, किसके साथ है, with his friends, of the situation, of, in, on, to, far, over, since, for, ये सब के सब prepositions। ये स्टूडेंट समझ लगी कि prepositions क्या है, जो किसी चीज से पहले लगे और ये ऐसी किसी ताल्लुक जाहिर करती है वर्ब का, या किसी नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन वर्ब के साथ, वर्ब के साथ नहीं बल्कि नाउन प्रोनाउन के साथ। तो ये हैं कौन से लफ्ज, इन, ऑन, टू, फॉर, सिंस, अंडर, ओवर, थ्रू, ये सब जो है एक सीरीज है, ये प्रपोजिशंस होती हैं। इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं ताकि आपके जहन में क्लियर आइडिया हो जाए कि एक्चुअली प्रपोजिशन है क्या। तो आई एम गोइंग टू शो यू अ शीट ऑन योर स्क्रीन so that you can have an idea about what real preposition is. Dear students, this is a sheet before you on the screen, and it has been prepared very carefully just to give you an idea about what the preposition is. Look at, preposition must have an object, but before that I will take you to second rule। Preposition means place before, किसी चीज का पहले प्लेस करना, पहले लगाना। So the name preposition indicates that a preposition usually comes before something that is called its object। यानी किसी भी चीज किसी नाउन प्रोनाउन वगैरह से पहले आती है। जैसे I put it in the box। अब in preposition है, the box ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये नाउन। अब ये प्रीपोजिशन है, ये जैसे मैंने बहुत सी एग्जांपल्स आपको दी, यहाँ देखा, दिस इज फ्रॉम माय वाइफ एंड मी, तो फ्रॉम के बाद ये ऑब्जेक्ट है माय वाइफ एंड मी, या दैट्स बिटवीन हिम एंड हर, बिटवीन प्रीपोजिशन है, हिम एंड हर जो है ये ऑब्जेक्ट है। या इसको और थोड़ा सा मैं ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं, दे आर इन द किचन, इन प्रीपोजिशन द किचन ऑब्जेक्ट है। ओके, सो प्रेपोजिशन जो है इसका मतलब होता है
प्लेस बिफोर, किसी चीज से पहले लगाना, और ऑब्जेक्ट से पहले ये लगती है। जैसे अब इसमें फिर मैं आपको बट इवन व्हेन अ प्रीपोजिशन डज नॉट कम बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, बाजुकात अपने ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आती वो, लेकिन ऑब्जेक्ट इट इज स्टिल क्लोजली रिलेटेड टू इट्स ऑब्जेक्ट, ये अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जरूर होती है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट फिर बाजुकात सवाल की शक्ल में, क्वेश्चन की शक्ल में पहले चला जाता है, और वो मौजूद होता है लेकिन वो क्वेश्चन की शक्ल में आ जाता है ताकि उसका आंसर दे दे। जैसे हु डिड यू टॉक टू, क्वेश्चन मार्क, टू प्रपोजिशन है, इसके आगे नहीं, लेकिन इसको सवाल के तौर पे पेश कर दिया गया। हु जो है इसको पहले लगा दिया गया सवाल बना के, यानी यू टॉक्ड टू हुम, किससे आपने बात की? तो जब सवाल किया हु डिड यू टॉक टू, ठीक है, इसका आंसर आई टॉक टू अहमद टॉक टू जैन। तो यानी जब इससे प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट जरूरी है, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट जो है वो पहले सवाल की शक्ल में चला जाता है। तो इस तरह मतलब ये है कि प्रेपोजिशन के साथ इसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वरना वो सही नहीं। ये उसका एक नोट था जो मैंने आपको बताना था। अब ये फर्स्ट है, अ प्रेपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, तो वो all prepositions are object. If a preposition doesn't have an object, it is not a preposition. It's probably an adverb. फिर ये adverb बन जाता है। जैसे a preposition always has an object, and adverb never has an object. Adverb की जो है object नहीं होता है। Look at these examples. They are in the kitchen. ये in है और the kitchen ये preposition. The preposition in has an object, the kitchen. But please come in. अब ये इन प्रेपोजिशन लगी है, लेकिन जब ये इन जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया कि कहाँ आइए, ये इसका एडवर्ब हो गया कि वर्ब की ऐसा लफ्ज जो वर्ब के बारे में बताया कि वो किस जगह पे हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट, तो एडवर्ब इज इन हैज नो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन आइए अंदर, तो ये अंदर के माने में आ गया और ये वर्ब के साथ लगा, तो ये एडवर्ब। देयर वाज अ डोरवे बिफोर मी, मेरे आगे एक रास्ता था, तो बिफोर के बाद मी आ गया ऑब्जेक्ट। आई हैड नेवर सीन इट बिफोर, अब ये जो वर्ड है इसमें बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो इसमें सीन इट बिफोर, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एडवर्ब है। या आई विल कॉल आफ्टर वर्क, आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद जो है, ये याद रखिए वर्क जो है ये नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, यहाँ नाउन है। आई विल कॉल आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद आपसे बात करूँगा। तो ये तो हो गया आफ्टर प्रोनाउन है और वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट। ही कॉल्ड सून आफ्टर, अब सून आफ्टर, उसने थोड़ी ही देर बाद, जल्द ही थोड़ी देर बाद कॉल की। अब कॉल्ड सून आफ्टर, ये इसका जो है वो एडवर्ब है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला रूल प्रेपोजिशन का कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर नहीं ऑब्जेक्ट होता तो वो प्रेपोजिशन वो एडवर्ब होता है। और दूसरा रूल मैंने कहा बता दिया था, प्रेपोजिशन जो है क्योंकि पहले लगती है और इन के बाद ऑब्जेक्ट, अगर बाद में नहीं है तो बाज़ औक़ात सवाल की शक्ल में पहले। थर्ड इसका प्रिंसिपल है, अ प्रोनाउन फॉलोइंग अ प्रेपोजिशन शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसी प्रेपोजिशन के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। कभी नहीं कहेंगे कि दिस इज फ्रॉम आई, नहीं, दिस इज फ्रॉम मी, या डिवाइड इट बिटवीन शी एंड आई, नो, डिवाइड बिटवीन हर एंड मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। दिस इज फ्रॉम माई वाइफ एंड मी,
that's between him and her, Mary gave it to them. इसके बाद फोर्थ इसका है कि preposition फॉर्म्स क्या होती है। सिर्फ ये सीधा है कि preposition सिंगल वर्ड की ज्यादा होती है, लेकिन चंद एक preposition है जो एक वर्ड से ज्यादा, उसको कॉम्प्लेक्स। एक होती सिंपल, अगर एक लफ्ज की है तो सिंपल होती है, और अगर वो ज्यादा अल्फाज की है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे वन वर्ड प्रपोजिशन, बिफोर, इनटू, ऑन वगैरह, ये सिंपल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू, ये दो लफ्ज की होगी, इन स्पाइट ऑफ तीन लफ्ज की होगी, ऑन अकाउंट ऑफ तीन लफ्ज की, तो ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स है। पांचवा है इसका रूल, टू प्रपोजिशन एंड टू इन्फिनेटिव आर नॉट द सेम। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि टू प्रपोजिशन भी है, और टू अगर किसी वर्ब से पहले होगा तो वो इन्फिनेटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। जैसे ये इन्फिनेटिव मस्दर जिसको कहते हैं। अगर तो ये किसी नाउन प्रोनाउन से पहले लगा है तो फिर तो ये प्रपोजिशन है। अगर किसी वर्ब से पहले लगा है तो इन्फिनेटिव। आई वॉन्ट टू गो, टू के बाद अगर गो वर्ब है तो वो प्रपोजिशन नहीं है टू, वो फिर मस्दर है, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन आई लुक फॉरवर्ड टू लंच, देखो आई लुक फॉरवर्ड टू लंच, ये लंच जो है ये नाउन है। जब लंच नाउन के नाउन में है तो मैं लंच को इंतजार कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, मैं आपसे मिलना, सीइंग टू सीइंग यू, सी नहीं सीइंग यू, ये मिलना, मुलाकात करना, मैं आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। लेकिन आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, सी ये जो है ये वर्ब है, मैं आपको देखने का मुंतज़िर हूँ। देखना, टू सी जब वर्ब आ गया उससे पहले तो ये इन्फिनेटिव होगा, ये गलत होगा इसका प्रपोजिशन का। इस तरह दे आर कमिटेड टू प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के बारे में पूरा अज़म है। लेकिन दे आर कमिटेड टू कीप द प्राइस डाउन, वो कीमतों को कम करने का उनका अज़म है। तो करने का तो ये वर्ब हो गया कीप, तो इसके साथ प्रपोजिशन जो है वो गलत होगी। आप सिर्फ एक बात को देखिए कि प्रपोजिशन वर्ब के साथ नहीं आएगी, प्रपोजिशन नाउन प्रोनाउन के साथ। या ये देखें कीपिंग द प्राइस डाउन, ये कीपिंग द प्राइस डाउन जो है ये पार्टिसिपल की शक्ल है। जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो इसके साथ आ सकता है, जब आईएनजी वाली फॉर्म है उसके साथ आ सकता है, सिंपल वर्ब के साथ नहीं। तो इसका छठा रूल जो है ये बड़ा वाजे आपको कर देगा द गोल्डन preposition रूल। वो क्या है? अ preposition is followed by a noun, जो मैंने पहले कहा कि preposition जो है एक नाउन से पहले आती है, कभी किसी वर्ब से पहले नहीं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि ये वर्ब नाउन से पहले आएगी, ये ड्राइव वर्ब से पहले नहीं। जब वर्ब से पहले होगी तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये चंद रूल्स हैं इसके प्रपोजिशन के। थोड़े से ये बोरिंग है, थोड़े से ये आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही। जब इस शीट को आप दोबारा देखेंगे समझेंगे, और मैं इसको रिवाइज भी करूंगा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि टुडेज ग्रामर, एक्चुअली मैं इस बारे में कन्विंस हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर जो है वो कांटों की सेज, जैसे वो कांटों पे खड़े हुए हैं, बेचैन, मुश्किल है, समझ नहीं आ रही। क्यों? वो समझना चाहते नहीं। देखें, किसी चीज को सीखने के लिए आपकी पूरी अटेंशन, पूरी कंसंट्रेशन और आपकी सबसे बड़ी विल पावर होगी कि आपके अंदर ये सेंसेशन कि मैं ये सीख सकता हूँ। अब ईडियम्स तो याद करने वाली बात है, वो तो आपने 10 याद कर लिया। प्रेपोजिशन के ये रूल जो है ये जहन में रखें
कि ये रूल्स है ना, ये प्रेपोजिशन जो किसी भी चीज से पहले आती है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी चीज के बारे में है, शख्स या चीज को ऑब्जेक्ट, तो किसी शख्स या चीज जो है उससे पहले आएगी, किसी काम से पहले नहीं आएगी। ये छोटा सा एक उर्दू में एक झटका सा तरीका है, इसको ध्यान में रख लें। और जब ये इसको ज़हन में रखेंगे तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो सीरीज लेके आऊँगा आपके साथ, वो मुख्तलिफ प्रपोजिशन है जिनको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। और लेकिन इसके साथ-साथ आपके जो है लेसन्स भी चलते रहेंगे और साथ जो है वो आपका ये ग्रामर भी चलता रहेगा। तो till my next sixth lecture, it is Allah Hafiz, and we'll meet again inshallah in lecture number 6. Allah Hafiz.